الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآنی عربک گرامر کا آج ہمارا درس نمبر 28 ہے۔ اس درس میں ہم الجملۃ الفعلیہ میں سے فعل مضارع کو کنٹینیو کریں گے۔ یہ ہمارے جملہ فعلیہ کا پارٹ نمبر 9 ہے، یعنی 9واں باب ہے، جس میں ہم فعل مضارع کے مزید کچھ قواعد پڑھیں گے۔ ابھی تک آپ نے جانا کہ جب ہم جملہ فعلیہ کی بات کریں گے یا فعل کی بات کریں گے، فعل کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جس میں زمانہ پایا جائے، یعنی ہمارے پاس دو طرح کے افعال ہوتے ہیں، یا تو وہ افعال جو ماضی میں کیے جائے، یعنی جن کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہے، یا ایسے افعال جن کا تعلق مضارع کا مطلب ہوتا ہے حال اور مستقبل، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اس کے بارے میں ہم نے یہ جانا ابھی تک کہ فعل مضارع کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے سیغوں کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے اوزان کتنے ہیں، اور یہ بھی جانا کہ اس کو کس طرح جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی فعل مضارع کو کنٹینیو کریں گے، کچھ مزید ہم اس کے یعنی قاعدے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ قاعدہ ہم جانیں گے کہ فعل مضارع کو اگر ہمیں منفی بنانا ہو، اگر اس میں ہمیں نیگیٹو پہلو یا نیگیٹو معنی، منفی معنی ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ یہ ہمارے پاس قاعدہ نمبر 11 ہے فعل کا، اور قاعدہ نمبر 11 میں ہم جانیں گے کہ فعل مضارع کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ فعل ماضی کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے، اس سے پہلے ہم ما لگاتے ہیں یا لا لگاتے ہیں۔ اسی طرح فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے اس فعل سے پہلے لا لگایا جاتا ہے۔ لام الف لا کا جو ترجمہ ہے وہ نہیں ہے۔ جو ہی آپ دیکھیں گے فعل مضارع سے پہلے لا لگا ہوا، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اس وقت اس فعل مضارع کو منفی بنایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، لا لگانے کے بعد فعل مضارع میں کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یعنی جس طرح ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ بناتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کے جو اس کا جو اپنا اعرابی حالت ہے یا اس کی جو اپنی اعرابی کنڈیشن ہے، اس لا لگانے کے بعد اس اعرابی کنڈیشن میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہیں مادے کے 3 حروف میم، لام اور کیف۔ اگر ہم میم لام کیف کو ہم ڈالیں گے وزن پر یفعلو کے وزن پر، کیونکہ ہمارے پاس یفعلو، یفعلو اور یفعلو یہ 3 اوزان ہیں فعل مضارع کے۔ اگر ہم میم لام کیف کے ان 3 مادے کے حروف کو یفعلو کی وزن پر، یعنی فعل مضارع وزن یفعلو پہ ڈالیں گے، تو یہ بنے گا یملکو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا جو یا ہے یہ علامت مضارع ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس لام کلمہ ہے اس پہ ہمیشہ پیش رہے گی۔ جو ہمارے پاس عین کلمہ ہے اس پہ ہمیشہ جزم رہے گی، اور جو ہمارے پاس لام کلمہ ہے یعنی فعلہ یعنی عین کلمہ ہے، عین کلمہ جو ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ زیر رہے گی یفعلو کے وزن کے مطابق۔ تو فعل مضارع میں ہم نے یہ جانا کہ ایک تو علامت مضارع ہوتا ہے یعنی فعل مضارع میں، دوسرا ہم جو لام کلمہ ہے اس پہ ہمیشہ پیش رکھتے ہیں، جبکہ فا کلمہ جو ہے اس کو ہم ساکن بناتے ہیں، اور عین کلمہ جو ہے اس پہ زیر زبر یا پیش آ سکتی ہے۔ تو یفعلو کے وزن پر ہمارے پاس میم لام کیف کو ہم رکھیں گے، یہ بنے گا یملکو۔ یملکو کا ترجمہ ہے وہ اختیار رکھتا ہے یا وہ اختیار رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اختیار مطلب پوزیشن۔
वो ताकत रखता है, वो इख्तियार रखता है या वो इख्तियार रखेगा, क्योंकि हमने ये जाना कि मुजारा में हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का तर्जुमा निकल आता है। इस लफ्ज को हम यानी इस्तेमाल ये लफ्ज हुआ है सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 19 में। अल्लाह फरमाता है यौमा, जिस दिन यानी जिस रोज, ला तमलिकु, नहीं रखेगा इख्तियार, क्योंकि तमलिकु जो है ये हमारे पास यानी सेकंड पर्सन है। ला तमलिकु, नहीं रखता, नहीं रखेगा इख्तियार, नफ्सुन, कोई शख्स, लिनफ्सिन, किसी शख्स के लिए, शायअन, कोई चीज का। यानी क़यामत के बारे में जिक्र है, क्योंकि यहाँ पर फेल मुजारा का तज़किरा किया गया। ला तमलिकु, नहीं इख्तियार रखेगा कोई नफ्स यानी कोई शख्स, किसी शख्स के बारे में कोई चीज। यानी अल्लाह ताला क़यामत की बात यहाँ पर बयान कर रहा है, और अल्लाह फरमाता है कि क़यामत ऐसा दिन होगा जब किसी शख्स को कोई इख्तियार नहीं होगा किसी शख्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। यानी ऐसा मौका, ऐसा दिन आने वाला है जिसपे आप हर एक नफ्स जो है वो अपने बारे में यानी सिर्फ पूछगछ उसकी होगी, वो इख्तियार नहीं रखेगा। जिस तरह दुनिया में हम इख्तियार रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की चीजों के ऊपर, क़यामत का दिन आने वाला है जिसमें कोई भी शख्स, कोई भी नफ्स किसी भी दूसरे नफ्स पर कोई भी इख्तियार नहीं रखेगा। अल्लाह फरमाता है वल अम्रु, और जो हुक्म होगा, वल अलिफ लाम लगाने से ये हमारे पास ये मारिफा बन गया। वल अम्रु, और हुक्म होगा, यानी यहाँ पर कोई हुक्म नहीं बल्कि खास हुक्म जो है उसका तज़किरा है। वल अम्रु, और हुक्म होगा, यौमइज़िन लिल्लाह, उस रोज अल्लाह का। वैसे भी अल्लाह का ही हुक्म है, मगर क़यामत का दिन खासियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला तमाम इख्तियारात लोगों से छीन कर अपने पास रखेगा। तो किसी भी नफ्स को, किसी भी नफ्स के लिए, किसी भी चीज में क़यामत के दिन कोई इख्तियार नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पर जो फेल मुजारा इस्तेमाल हुआ है वो है तमलिकु, ये फेल फाइल इसमें मौजूद है, और शायअन जो इसमें है ये हमारे पास यानी इसका मफऊल है, और नफ्सुन इसमें हमारे पास यानी फाइल है। तमलिकु नफ्सुन फाइल, और शैअन हमारे पास मफऊल। कैसे पता चला? जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हमारे पास अगर जुमले यानी फेल के बाद, जुमले फेलिया या कहिए अगर आप फेल के बाद हमारे पास कोई भी इसम हमें पता चले जो कि अराब के हिसाब से रफा में है तो वो फाइल होगा, और अगर कोई इसके बाद अराब के हिसाब से कोई भी हमारे पास इसम जो है वो रफा से निकल कर यानी नस्ब में होगा तो उसको हम मफूल कहते हैं, जैसा कि आपने इस जुमले में, इस आयत में देख लिया है। बाकी यहाँ पर लिल्लाही, ये लामी जारा की वजह से, और लिनफ्सिन आप देख रहे हैं ये भी लामी जारा की वजह से। लामी जारा जब होगा, या जिसको हम यानी हरफी जारा कहते हैं, उस जारा की वजह से जो इसम होता है वो मजरूर बनता है, वो हालत जर में चला जाता है। हमारे पास एक और मादे का हर्फ है हमारे पास, यानी 3 हरफी सुलासी मुजरद में दा, लाम और मीम। इन 3 हरूफी मादा को हम यफ़इलु के वजन पे, जैसा कि ऊपर आपने देखा उसी तरह के वजन पे, फेल मुजारे के वजन यफ़इलु पे डालेंगे तो ये बनेगा यज़लिमु, या हमारे पास अलामत मुजारा। बाकी ज़ा साकिन, लाम के नीचे ज़ेर और मीम के ऊपर पेश, ये यफ़इलु की वजह से है। तर्जुमा होता है वो जुल्म करता है या वो जुल्म करेगा, क्योंकि फेल मुजारा है, इसमें दोनों तर्जुमा निकलता है, प्रेजेंट का भी तर्जुमा, फ्यूचर का भी तर्जुमा। अल्लाह फरमाता है सूरतुल यूनुस आयत नंबर 44 में, इन्नल्लाह, इन्ना जो है ये, इसको हमने बताया था पहले ही, ये हमारे पास मुशब्बा बिल फेल इसको कहते हैं, यानी फेल की तरह ये एक्ट करता है। इसको हम इन्ना व अखवातुहा में पढ़ चुके हैं, इसके तमाम कायदे की जब भी इन्ना आता है तो ये जुमले के इब्तिदा में आता है, और जो ही ये जुमले के इब्तिदा में आता है तो ये पूरे जुमले का कंट्रोल अपने उमर रखता है। और इन्ना के बाद जो इसम होता है वो उसको हम इन्ना का इसम कहते हैं, और उसके बाद जो होता है उसको हम इन्ना की खबर कहते हैं।
اور इन्ना का इसम जो है ये हालत रफा से निकलकर हालत नस्ब में चला जाता है। इसी तरह आपने लिखा इन्नल्लाह, असल में था अल्लाहु, मगर इन्ना लगाने की वजह से ये बन जाता है अल्लाह। इन्नल्लाह यानी बिलाशुबा अल्लाह, ला यज़लिमु, असल में हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो इस ला के ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी ला इब्तिदा में जुमले फेलिया के इब्तिदा में आता है, या किसी भी मुजारा, या हमारे पास इससे पहले माजी की बात हुई थी, इससे पहले आता है तो इसमें नेगेटिव पहलू डेवलप होता है। इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह, ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करता। अगर यज़लिमु होता तो इसका तर्जुमा होता जुल्म करता है, इसमें हो गया ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करता है। अन्नासा यानी बेशक अल्लाह तबारक तआला जुल्म नहीं करता लोगों पर, शायअन कोई भी, यानी किसी भी चीज का अल्लाह तबारक तआला की तरफ से लोगों पर कोई जुल्म नहीं है। वलाकिन्ना, वलाकिन्ना भी इन्ना की बहन है, यानी इन्ना जो है वो अखवातुहा में वलाकिन्ना भी आता है, लाकिन्ना आता है। वह जो है ये हरफ अतफ है, ये बीच में आता है जोड़ने के लिए, इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। वह और लाकिन्ना, बल्कि, यानी जिस तरह उर्दू में हम लेकिन पढ़ते हैं ना, अरबी में लाकिन्ना है। वलाकिन्नन्नासा, असल में था अन्नासु, मगर लाकिन्ना की वजह से अन्नासा ये रफा से निकलकर नस्ब में चला गया। ये कायदे हमने इन्ना व अखवातुहा लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वलाकिन्नन्नासा, और बिला, और यकीनन, और लेकिन, अन्नासा लोग, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर, यज़लिमून जुल्म करते हैं। ठीक है, जुल्म करने वाले या जुल्म करते हैं। तो तर्जुमा बिलाशुबा अल्लाह किसी नफ्स पर जुल्म नहीं करता, या किसी नहीं जुल्म करता लोगों पर, शयअन कोई भी, वलाकिन्ना और लेकिन, अन्नासा लोग, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर, यज़लिमून जुल्म करते हैं। यानी जब भी शख्स, कोई भी शख्स, यानी किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नुकसान होता है, या कोई इशू उसको होता है, उस वक्त हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर अजाब नहीं, बल्कि हमने जो अमाल किए हैं उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हम पे हो रही हैं। हाँ, कभी कभी अल्लाह तबारक ताला मोमिनून को आजमाता है तो उनकी कंडीशन अलग होती है, मगर अक्सर और बेशतर इंसान जो वबाल लाता है ये अल्लाह की तरफ से नहीं होता। अल्लाह तो हमारे लिए आसानी चाहता है, इंसान अपने अमाल की वजह से खुद अपने ऊपर वबाल लाता है। इसका तर्जुमा यहाँ है कि अल्लाह की तरफ से कोई जुल्म नहीं होता किसी भी चीज का। अगर आप खुद देखें तो वो हमने अपने ऊपर खुद जुल्म किया होता है। इसी तरह यहाँ पर है नून वा और रा, इसको आप फेल मुजारा यानी वजन जो है यफ़उलु पे डालिए तो ये बनेगा यंजुरु। यंजुरु का तर्जुमा है वो देखता है या वो देखेगा, दोनों तर्जुमे यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के। अल्लाह तबारक तआला ने सूरतुल गाशिया में फरमाया अफला यंजुरूना, क्या पस नहीं वो देखते हैं। ठीक है, यंजुरूना वो देखते हैं या वो देखेंगे। अफला यंजुरूना, क्या पस, यानी फा का जो तर्जुमा है उसका तर्जुमा पस भी है और भी चीजें हैं। आ का तर्जुमा यहाँ पर क्या है, और ला जो है ये नफी का ला है। अफला यंजुरूना, क्या पस नहीं देखते हैं, इलल इबिली, इलल इबिली ऊंटों की तरफ, यानी क्या आप नहीं देखते हो, क्या वो नहीं देखते हैं ऊंटों की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला यानी इस आयत में हमें गौर फिक्र का यानी एक यानी इसका हुक्म करते हैं, क्या वो नहीं देखते हैं ऊंटों की तरफ, कैफ़ खुलिकत, कैसे पैदा किए गए हैं। यानी अगर आप ऊंट को देखेंगे, अल्लाह तबारक तआला ने ऊंट के अंदर बेशुमार निशानियां बयान की है। ऊंट रेगिस्तानों में रहता है, महीना महीना खाने पीने बगैर रहता है, और उसकी बनावट अल्लाह तबारक तआला ने उसके माहौल के मुताबिक बना रखी है। तो चूंकि उस वक्त जब ये कुरान नाजिल हो रहा था और लोगों के सामने ऊंट थे, और ऊंट जो है उसको हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने
लोगों को उन्हीं की वो आम मिसाल बयान की है कि क्या तुम अल्लाह के हुक्म के या अल्लाह के यानी जो उसके बनाने के तरीके में तुम शक करते हो? क्या तुम नहीं देखते अल्लाह तबारक ताला ने ऊँट को कैसे पैदा किया, यानी कैसी अजीब मखलूक़ात ऊँट को बना दी। तो ये इख्तियार किसी इंसान या किसी और शय के अंदर नहीं है, ये सिर्फ उस कादिर मुतलक के अंदर है जिसने तुम्हें भी पैदा किया। व इलस समाई, और आसमान की तरफ, यानी क्या वो नहीं देखते ऊँटों की तरफ कैसे पैदा किए गए, और आसमान की तरफ कैफ रुफ़िअत, कैसे बुलंद किया गया उसे। यानी अल्लाह तबारक ताला ने अपनी निशानियों का जिक्र किया कि क्या आप नहीं देख, क्या वो नहीं देखते, यंजुरूना, क्या नहीं देखते हैं कि कहने वाले पूछने वाले ऊँट की तरफ कि उसको कैसे पैदा किया गया है, और आसमान की तरफ कैसे ऊपर किया, रुफिया ऊपर करना, ऊंचा करना, कैसे उसको बुलंद किया गया है। तो इस आयत में भी आपने देखा यंजुरूना जो फेल मुजारा है उसका यानी यानी नेगेटिव पहलू लाया गया है ला की वजह से। पहले तो यहाँ पर यानी जुमला इस्तिफामिया से यानी हर्फ इस्तिफामिया से शुरू किया गया, और इसके बाद यहाँ पर नफी का पहलू भी लाया गया। दोनों चीजें इस जुमले में इस्तेमाल किए गए। और मिसालें हमारे सामने हैं, नून ज़ा और रा, उसको आप यफ़उलु के वजन पे डालिए। यही जो ऊपर मैंने बयान किया इसको मैंने यहाँ पर फिर से बयान किया है। यंजुरु, वो देखता है या देखेगा, वही अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत, सूरतुल गाशिया। उसके बाद अल्लाह फरमाता है व इलल जिबाली, यानी ये ला का ये जो अफला का ये जो माने हैं ये इस आयत में भी है, इस आयत में भी है, इस आयत में भी है, इस आयत में भी है। यानी क्या या पस क्या नहीं देखते हैं वो ऊंट की तरफ या ऊंटों की तरफ कि कैसे पैदा किए गए, और आसमान आसमान की तरफ कैसे बुलंद किए गए, उसे कैसे बुलंद किया गया उसे। व इलल जिबाली, और पहाड़ों की तरफ कैफ नुसिबत, कैसे खड़े कर दिए गए। यानी पहाड़ भी अल्लाह तबारक ताला की एक खास निशानियों में से निशानी है, क्योंकि उनको नस्ब किया गया है, गाड़ा गया है मेखों की तरह। जिस तरह हम किसी जगह कोई चीज रखने के लिए जो कील इस्तेमाल करते हैं, मेखे इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने जमीन को चटेल रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए पहाड़ों को गाड़ दिया है। तो अल्लाह ने यहाँ पर पहाड़ों का भी जिक्र किया, क्योंकि जब आयत नाजिल हो रही थी मक्का मदीना में, आपको पता है पहाड़ चारों तरफ से, तो ये उनकी इन्हें आंखें खोलने के लिए इन मिसालों को बयान किया गया। व इलल अर्द कैफ सुतिहत, और जमीन की तरफ, यानी क्या वो नहीं देखते जमीन की तरफ कैफ सुतिहत कि कैसे जमीन बिछा दी गई। कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मिसालें बयान की गई, और अक्सर और बेशतर वो मिसालें हैं जो बुनियादी है, यानी जो आप आम मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके लिए कोई साइंस, कोई लिटरेचर, कोई फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं। और जब ये मुखातिब यानी हुआ था तो उस वक्त जो जिनका खिताब था, जिनसे खिताब था, वो मुशरिकीन मक्का थे या अरब के लोग थे, उसमें अक्सर जाहिल लोग थे। और जो आम फहम मिसालें कुरान ने दी समझाने के लिए, आप देख सकते हैं वो भी नॉर्मल मिसालें हैं, इसको कोई फिलॉसफी की जरूरत नहीं है समझने। तो ये चार आयतें जो है सूरतुल गाशिया आयत नंबर 17 से लेके आयत नंबर 20 तक, इसमें भी हमने ला का जो माने देखा, यानी नेगेटिविटी का माने मफहूम इस में किया गया है वो ला की वजह से। और लफ्ज ला की वजह से इस यानी फेल मुजारे में आप देख रहे हैं कि इसमें किसी भी जगह कोई भी अराबी तब्दीली नहीं आती। इसके बाद हमारे पास कुछ और मिसालें हैं। हमारे पास खा लाम काफ, इसको फेल मजहूल आप बनाइए, और आपको पता है कि माजी मजहूल जब हम बनाते हैं तो वो उसका एक ही हमारे पास सेगा है फ़ुइला, ये एक ही वजन है फ़ुइला। तो खालाम का आपको माजी मजहूल फ़ुइला पे डाल के ये बनेगा खुलिका। तो खुलिका जो है यहाँ पर ऊपर आपने देखा खुलिकत इससे बना। रफ़ाइन, इसको माजी मजहूल फ़ुइला के वजन पे डालिए तो रुफ़िआ, ऊपर आपने देखा रुफ़िअत बन गया। नून साद बा माजी मजहूल फ़ुइला पे डालिए, ये बनेगा नुसीबा, नुसीबा से नुसीबत बन गया।
सीन तोहा माजी मजहूल फ़ुइला पे डालिए बनेगा सुतिहा, सुतिहा से सुतिहत यानी चौथा जुमला। तो ये चार चीजें जो इसमें बयान की गई है, खुलिकत, रुफियत, नुसिबत और सुतिहत, ये चारों के चारों हमारे पास माजी मजहूल के सेगे। और माजी मजहूल जैसे कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो वो एक तो माजी मारूफ था, दूसरा माजी मजहूल। माजी मारूफ मतलब डायरेक्ट सेंटेंसेस, और माजी मजहूल इनडायरेक्ट या जिनको हम कह सकते हैं पैसिव सेंटेंसेस। मारूफ जो है एक्टिव सेंटेंसेस और मजहूल जो है वो है पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव सेंटेंसेस में हमने बयान किया गया, इसमें फाइल नहीं होता बल्कि वो मफऊल जो है वो फाइल की जगह ले लेता है। तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, तो यहाँ पर उन्हीं का एक और मिसाल दी गई। इसके बाद हम एक और मिसाल देंगे, आइन बा और दाल यफ़अलु के वजन पे डालिए माजी, यानी ये हमारे पास ये फेल मुजारा का सेगा है। यफ़अलु इसका वजन है, आइन बा दाल को डालिए बनेगा यअबुदु। तर्जुमा होगा वो बंदगी करता है, वो बंदगी करेगा। सूरतुल काफिरून आयत नंबर 1 से 3 पर अल्लाह तबारक तआला ने इसी यअबुदु को इस्तेमाल किया गया है, और उससे पहले ला का इस्तेमाल किया गया है। यानी लफ्ज ला, हर्फ ला की वजह से इसमें इनकार का पहलू डेवलप हुआ है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल, या आपको पता है हर्फ निदा है, और या जो है यानी अल काफिरूना अलिफ लाम वाले जुमले पे खुद नहीं लगेगा जैसा कि आपने यहाँ देखा। तो इससे पहले या तो अय्युहा हमें लगाना पड़ेगा या अय्यतुहा। अय्यतुहा लगता है मुअन्नस पर और अय्युहा लगता है मुज़क्कर पर, और काफिरूना जो है ये यानी तीसरा सेगा है, और तीसरा सेगा मुज़क्कर का सेगा है, मुज़क्कर जमा का सेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर या अय्युहल काफिरूना यानी ए काफिरो, ए काफिरो इसका तर्जुमा होता है ए काफिरो। यहाँ निदा दिया जाता है, आवाज दी जाती है काफिरों को। ये चीजें मैं जब आपसे बयान कर रहा हूं ना, तो मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं। वजह इसकी ये है कि इन चीजों को हमने तफसीलन पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इशारा दे रहा हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि हर्फ निदा जब आता है और अलिफ लाम वाले लफ्ज से मिलता है तो क्या बनता है, बीच में अय्युहा क्यों आ गया, ये तमाम चीजें हमने पहले ही मेंशन की है। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि माने हमें पता है, इसका कायदा हमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से पता है। इस आयत के बाद अल्लाह फरमाता है ला आबुदु, आबुदु का तर्जुमा है मैं इबादत करता हूं। ठीक है, मैं इबादत करता हूं। आबुदु ये हमारा 13वां सेगा है फेल मुजारा का, आबुदु और नाबुदु। नाबुदु होता है हम सब इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूं। ला आबुदु मैं इबादत नहीं करता, मा ताबुदूना जिनकी तुम इबादत करते हो। सूरतुल काफिरून जिसको हम यानी टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी भी कहते हैं, इसमें 2 और 2 4 की तरह बातें क्लियर की जाती है काफिरों के साथ। यानी हमारे बीच में जो यानी एक तरह से मफामहत, या जिसको हम कह सकते हैं बातचीत, या जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे बीच में मुआहिदा हो सकता है हर चीज के बारे में। हम हर चीज में आपसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, मगर तौहीद के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला की जो यानी उनका जो तौहीद है, उनकी ज़ात मुबारका जो एक है, इस चीज के बारे में आपसे कोई मुआहिदा नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला ने एक वाज़िह कुरान की आयत सूरतुल काफिरून को नाजिल करके क्लियर कर दिया कि भाई तौहीद के मुकाबले में इसमें कोई भी कंपैरिजन या कोई भी कंपैशन या कोई भी जिसको हम कह सकते हैं यानी मफामहत वो नहीं हो सकती। आप काफिर है तो काफिर रहे, हमें कोई गर्ज से नहीं है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मगर अगर आप ये कहें कि भाई हम आपके माबूदों को माबूद माने तभी आप हमारे माबूद को माबूद माने, हम ये नहीं कर सकते। हमारे पास भाई क्लियर रास्ता है कि अल्लाह एक है, और इस पॉलिसी में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप कितना भी हमें धोखा या कितना भी हमें आप लालच दे दो। तो ये वाज़िह किया गया है सूरतुल काफिरून में, ला अअबुदु नहीं इबादत करता हूं मैं,
मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते। यानी क्लियर हो गया, क्योंकि असल में ये जो आयतें हैं ये उस जमाने में नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का, यानी मक्का के जो मुशरिक थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने पेशकश की कि भाई हमारे बीच में तजाद पैदा हो गया, लड़ाइयाँ झगड़े हो गए, घरों में दो हिस्से हो गए, फादर और बच्चे के दरमियान यानी बेटे और बाप के दरमियान लड़ाइयाँ हो गई, भाई भाई का दुश्मन हो गया। जो आप कलमा बयान करते हैं उसको आप छोड़ दीजिए, अब हम कंपैरिजन करेंगे, अब हम आपस में कंपैशन रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम कोई बीच वाला रास्ता निकालेंगे। वो रास्ता ये होगा कि एक साल आप हमारी माबूदों की इबादत करो, दूसरे साल हम आपकी माबूद की इबादत करें। तो इससे क्या होगा कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसके जवाब में अल्लाह तबारक तआला ने सूरतुल काफिरून को नाजिल किया। अल्लाह ने फरमाया इन काफिरों से आप कह दीजिए, कुल या अय्युहल काफिरून, ए मेरे महबूब, या अय्युहल काफिरून, इन काफिरों से आप कह दीजिए, ए काफिरून। देखिए वाजिया बात की गई, ला अअबुदु, मैं बंदगी नहीं करता, मा तअबुदून, जिनकी तुम बंदगी करते हो। और चूंकि ये मैंने आपके सामने अर्ज किया ये यहाँ पर फेल मुजारा है, तो इसका मतलब सिर्फ यानी हाल की बात नहीं हो रही है बल्कि मुस्तकबिल की बात हो रही है। यानी मैं इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम इबादत करते हो, वाला, और नहीं, तुम इबादत करने वाले हो, आबिदूना, इबादत करने वाले हो, मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी ये जो आपने बीच वाला रास्ता निकाला है ना कि एक साल आप करें, कभी आप करें, कभी हम करें, इससे हम ठीक रहेंगे, भाई शिर्क के मामले में, तौहीद के मामले में दो और दो की तरह, यानी दो और दो चार की तरह हमारे पास बातें क्लियर है। इसमें हमारे पास कोई, यानी जिसको हम कह सकते हैं, लचक नहीं आ सकती। हमारी पॉलिसी जो है तौहीद के बारे में वो बहुत ही क्लियर है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, मैंने इसको आपके सामने बयान कर दिया। इसी तरह आइन लाम मीम यफ़अलु के वजन पे डालिए, ये बनेगा यअलमु, वो जानता है या वो जान लेगा। अल्लाह फरमाता है सूरह नमल आयत 65 में, ला यअलमु, नहीं जानता, मन फिस समावाती, जो कोई भी आसमानों, वल अर्दी, और जमीन में है, अल गैबा, यानी किस चीज की बात हो रही है, गैब की, इल्लल्लाह, बगैर अल्लाह। आपने देखा यहाँ पर बिल्कुल कैटेगोरिकली इस चीज का इनकार किया गया कि कोई नहीं जानता, किसी को इल्म नहीं है आसमान में या जमीन में, आसमानों में या जमीन में जो भी गैब है, जो भी यानी पर्दे के पीछे खबरें हैं, कोई नहीं जानता, इल्लल्लाह, बगैर हजरती अल्लाह जल्ल शानु। तो यहाँ पे भी आपने देखा ला यअलमु का तज़किरा है, यानी बिल्कुल इनकार किया गया हर एक किस्म की गैब का। और ये कहा गया कि सिर्फ, यानी मैंने आपके सामने भी पहले अर्ज किया था कि अगर ला के बाद इल्ला आएगा तो इल्ला के बाद जो हमारे पास इस्म होगा उसके लिए वो एक्सेप्शन है, बाकी जो उसके तमाम जो अस्मा होंगे उनके लिए वो लाजिमन नहीं होगा। इन्हें ला यालमु, कोई नहीं जानता आसमानों में क्या है, जमीन में क्या है, गैब की खबरें या गैब के मुतालिक इल्लल्लाह, सिर्फ ये जानता है अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि इल्लाह के बाद जो हमारे पास इसम है वो सिर्फ अल्लाह है। ठीक है, तो इस तरह आप अरबी जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह हमें पता चला कि अगर हमारे पास मुजारा का कोई भी फेल होगा, इससे पहले ला होगा, तो इसका तर्जुमा जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, इनकार में चला जाएगा। अब हम इसके बाद दूसरा एक कायदा शुरू करेंगे, इसको हम कायदा नंबर 12 कहेंगे। इंपॉर्टेंट कायदा है ये। इसमें हम जानेंगे कि अगर फेल मुजारा को हमें मुस्तकबिल के लिए खास करना हो, अभी देखिए हम जान रहे हैं कि फेल मुजारा जो है इसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बातें कर रहे हैं। यानी अभी क्या चल रहा है जिसको हम हाल कहते हैं, आने वाला जमाना जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, दोनों चीजों के बारे में हम जानते हैं कि इसको फेल मुजारा कहते हैं। मगर अगर आप फेल मुजारा को सिर्फ मुस्तकबिल के लिए यानी फ्यूचर के लिए खास करेंगे, यानी खबर सिर्फ फ्यूचर की होगी, उसमें प्रेजेंट का जिक्र नहीं आएगा, तो वो कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में आप एक कायदा याद रखिएगा कि फेल मुजारा से पहले अगर सीन जबर स आएगा, इस सीन जबर स लगाने से वो फेल, ये जो मुजारा है
وہ मुस्तकबिल करीब बन जाता है। मुस्तकबिल करीब मतलब यानी वो मुस्तकबिल के लिए खास हो जाता है, मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए खास बन जाता है। मगर कौन सा फ्यूचर? जो जल्दी आने वाला है। मुस्तकबिल के दो मतलब हमारे पास यानी पैमाने हैं। एक मुस्तकबिल तो वो है जो जल्दी आएगा, दूसरा मुस्तकबिल ये है जिसमें अभी टाइम है। ठीक है, तो एक मुस्तकबिल को हम मुस्तकबिल करीब कहेंगे, दूसरे मुस्तकबिल को हम कहेंगे मुस्तकबिल बईद। मुस्तकबिल करीब जो आने वाला फ्यूचर है बहुत जल्दी, और मुस्तकबिल बईद जिसमें अभी टाइम है। अगर आप फेल मुजारा को मुस्तकबिल के लिए खास करेंगे, अब आप उस मुस्तकबिल में भी जो मुस्तकबिल करीब है, तो आप देखेंगे कि फेल मुजारा से पहले सिन ज़बर सा लगा होगा। मिसाल देंगे, नून द्वारा हमारे पास सुलासी मुजर्रद के 3 मादे हैं, 3 हरफी मादा है। यफ़उलु के वजन पे डालिए, ये बनेगा यंजुरु। तर्जुमा वो देखता है, वो ये देखेगा। सूरत अन-नमल आयत 27 अल्लाह फरमाता है सनंजुरु। सा ये हमारे पास मुस्तकबिल करीब का लफ्ज सिन ज़बर सा है। नंजुरु ये कौन सा हमारे पास सेगा है? ये 14वां सेगा है, यानी जल्द ही हम देख लेंगे। सनंजुरु जल्द ही हम, ये यहाँ पर हमारे पास यानी जमा मुतकल्लिम का सेगा है नंजुरु, जल्द ही हम देख लेंगे। असदक्ता क्या तूने सच कहा, यानी हम जल्द ही इसको देख लेंगे कि अभी जो आप बात कर रहे हो क्या तुमने सच बात की। सूरत अन-नमल की आयत है ये। सनंजुरु असदक्ता जल्द ही हम देख लेंगे क्या तूने सच कहा। ये जो जल्द ही का तर्जुमा है ये असल में सिन ज़बर सा की वजह से आया, क्योंकि ये मुस्तकबिल करीब का सेगा यहाँ बन गया। इसी तरह फा रा और गैन यफ़उलु के वजन पे डालिए, ये बनेगा यफ़रुगु। तर्जुमा वो फारिग होता है या फारिग होगा। सूरत ar-रहमान अल्लाह फरमाता है सनफ़रुगु लकुम अय्युहत्थक़लानी, जल्द ही हम फारिग हो जाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, अय्युहत्थक़लानी ए दोनों ग्रोहों। यानी अल्लाह तबारक ताला हमें ये बता रहा है कि क़यामत के अंदर जो 2 ग्रोह बनेंगे, नेकों और बदों का, अल्लाह तबारक ताला फरमा मैं जल्दी ही फारिग हो जाऊंगा तुम्हारे लिए ए दोनों ग्रोहों। अय्युहत्थक़लान, सक़लान कहते हैं 2 ग्रोहों को, 2 जमातों को। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जल्द ही का जो तर्जुमा है वो मुस्तकबिल करीब का तर्जुमा है, और ये सिन ज़बर सा लगाने की वजह से। सिन ज़बर सा जो है ये फेल मुजारे के इब्तिदा में आता है और उस फेल मुजारा को मुस्तकबिल करीब में ले जाता है। इसी तरह हमारे पास दाल खा और लाम यफ़उलु के वजन पे बनेगा यदखुलु, वो दाखिल होता है या वो दाखिल होगा। सूरतुल मोमिन आयत नंबर 60 सयदखुलूना जल्द ही वो दाखिल होंगे सबके लिए, यानी यदखुलूना जमा का सेगा, सयदखुलूना जल्द ही वो दाखिल होंगे जहन्नमा दाखिरीना, जहन्नम में जलील होकर। जहन्नम के लिए जिक्र किया जा रहा है कि जल्द ही, यानी ज्यादा टाइम नहीं है, जल्द ही वो लोग दाखिल होंगे जहन्नम में जलील होकर। यहाँ पे भी आपने देखा ये जो लफ्ज जल्द ही है ये मुस्तकबिल करीब का यानी मानी देता है और सिन ज़बर सा की वजह से है। इसी तरह जीम आइन और लाम इसको यफ़अलु के वजन पे डालिए, बनेगा यजअलु, वो बनाता है या वो बनाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरत तलाक आयत नंबर 7 सयजअलुल्लाहु बअदा उसरिन युसरा, जल्द ही कर देगा अल्लाह तंगी के बाद आसानी। यानी जब इंसान को कोई तंगी आ जाती है ना, कोई परेशानी आ जाती है, अल्लाह ने उसके लिए बहुत ही लफ्ज अच्छा बयान किया गया है कि जल्द ही अल्लाह कर देगा उस तंगी के बाद जो तुम्हारे ऊपर आई है, उस मुसीबत के बाद जो तुम्हारे ऊपर आई है, युसरा उसको आसानी में तब्दील कर देगा। यानी इसके लिए भी मुस्तकबिल करीब का यानी सेगा बयान किया गया है सा। ठीक है, यानी अल्लाह तबारक ताला जब किसी को मुसीबत में डालता है तो उसको उसी मुसीबत में हमेशा के लिए नहीं डालता, बल्कि जल्द ही उस मुसीबत से उसको निकाल देता है। सब्र की तलकीन की गई। सूरह मरियम अल्लाह तबारक ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू जिन्होंने ईमान लाया, यानी जो ईमान लाए, ये यहाँ पर आमनू जो है ये यहाँ पर हमारे पास फेल मुजारा है, तो तर्जुमा होगा
जो ईमान लाए, लाया नहीं, लाया जो होता वो माजी का तर्जुमा होता है। वअमिलुस्सालिहाति, और जो अमल करते हैं नेक, सयजअलु, तो जल्द ही पैदा करेगा लहुमुर रहमानु, रहमान उनके लिए वुद्दा मोहब्बत, यानी बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए नेक, जल्द ही पैदा कर देगा उनके लिए रहमान मोहब्बत, यानी अल्लाह तबारक ताला उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। इसमें भी आपने देखा ये जो लफ्ज़ सा इस्तेमाल हुआ तो इसका तर्जुमा है जल्द ही, ये मुस्तकबिल करीब का माने हमें दे देता है। इसके बाद आप एक और मिसाल मैं दे देता, बट टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, 3 मिनट है, तो इस मिसाल को मैं छोड़ देता हूँ सूरत रूम की। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा तर्जुमा इसका कि गुलिबत रूम, मगलूब हो गए रूम, फी अदनल अर्द, करीबी ज़मीन में, वहुम मिन बअदिहिम मिन बअद गलबिहिम सयगलबून, और वही मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आयत है। जब रोमन्स और पर्शियंस के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त पहले लड़ाई में पर्शियंस ने यानी आतिश परस्तों ने यानी लड़ाई जीत ली थी। उसके बाद क्योंकि पर्शियंस जो थे वो मुशरिकीन थे, तो मुशरिकीन अरब बड़े खुश हो गए, जबकि जो रोमन्स थे वो क्रिश्चियंस थे, नसारा थे, और नसारा बहुत करीब मुसलमानों के, तो मुसलमानों को दुख हुआ। अल्लाह तबारक ताला ने उसके बाद आयत नाजिल की जिसमें सयगलबून फरमाया कि वो जल्दी अनकरीब रोमन्स फिर से उन पे जीत हासिल कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाकया है जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुशरिक के साथ कुछ यानी ऊंट या कुछ जानवरों को शर्त रख ली थी, और 8 साल के अंदर ही वो फिर फतह हो गया। इसको हम अभी यही छोड़ देते हैं इस मिसाल को। कायदा नंबर 13 हम लेंगे, जिसमें हम ये जानते हैं कि अगर फेल मुजारे से पहले सौफा इस्तेमाल लगाएंगे तो वो मुस्तकबिल बईद का माने देगा। अब मुस्तकबिल करीब का माने तब देगा जब सिन ज़बर सा होगा, और मुस्तकबिल बईद यानी वो मुस्तकबिल फ्यूचर जो काफी देर के बाद आने वाला है, इससे पहले अगर सौफा इस्तेमाल होगा। एक मिसाल लेंगे, आइन लाम मीम यफ़अलु के वजन पे डालिए, बनेगा यअलमु, वो जानता है, वो जानेगा। सूरतुल अनआम में अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 67, लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र्रुन, ठीक है, हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है। वसौफ तअलमून, और तुम्हें मालूम हो जाएगा, ये तुम्हें मालूम हो जाएगा। जो बताया गया है वो सौफा इस्तेमाल किया गया है, यानी मुस्तकबिल बईद में कयामत के दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा। तो करीब का जिक्र नहीं है बल्कि बईद का जिक्र यहाँ किया गया है, क्योंकि तअलमून से पहले सौफा को इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो लोग जो बनाते हैं अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद, फसौफ यअलमून, पस उन्हें मालूम हो जाएगा। मुस्तकबिल बईद की बात, फसौफ यअलमून यानी क़यामत के दिन वो मालूम हो जाएगा। तो इस तरह आज का लेक्चर हम एंड कर लेते हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अगले टाइम पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।